Hanji, good morning everyone. My name is Deepak Gupta and I welcome you all on the classes of Career Quest Patiala. ਸੋ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋਵੋਗੇ ਤੇ ਸੀਰੀਜ਼ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਜੋ ਟੌਪਿਕ ਆਪਾਂ ਨਵਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਦਾ, ਟੌਪਿਕ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਸੈਲੋਜਿਜ਼ਮ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੌਪਿਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਨਫਿਊਜ਼ਿੰਗ ਟੌਪਿਕ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਮੈਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਪਸ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਈਦਰ ਔਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਕੁ ਵਰਡਸ ਐਸੇ ਹੈ ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੈਲੋਜਿਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਉਹ ਵਰਡਸ ਬੇਸਿਕਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੈ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਹੈ ਦੇਖੋ। So in syllogism, there are 8 type of words where we'll focus on and that are so ਹੁਣ ਕੀ words ਹੋਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ? all ਤੇ focus ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ some ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ all ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, some ਕੀ ਹੈ, no ਕੀ ਹੈ, some not, only a few, either or ਤੇ possibility, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗੀ ਕਿ all ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ 100%, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਕੁਛ ਹਿੱਸਾ ਯਾਨੀ ਕਿ 1% ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 99%, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਹੁਣ ਇੱਥੇ 100 ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ? ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੋ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, 0%। ਸਮ ਨਾਟ ਮਤਲਬ ਸਾਰਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਬਟ ਉਸ ਚੋਂ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇਹ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੀ ਹੈ? ਵਾਟਰ, ਬਟ ਉਸ ਚ ਕੁਛ ਹਿੱਸਾ ਐਸਾ ਹੈ ਜੋ ਉਪਜਾਊ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਐਵੇਂ ਕਰ ਲਈਏ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਾਰਾ ਕੀ ਹੈ? ਲੈਂਡ, बट उस चो कुछ ऐसा हिस्सा है जो उपजाऊ नहीं है, यानी कि फर्टाइल नहीं है, ठीक है। यानी कि कुछ हिस्सा, सम नॉट, कुछ वो हिस्सा फर्टाइल नहीं है। फिर ओनली का मतलब अगे आप देखेंगे ओनली अ फ्यू, यानी कि कुछ ऐसा है मेरे को, ठीक है। कुछ ओनली अ फ्यू का भी चलो आप अगे क्वेश्चन के ही देखते हैं। ईदर और दे थोड़े 3 कॉन्सैप्ट फॉलो होंगे, ठीक है। फिर उस तो बाद पॉसिबिलिटी है, ये भी अगे आप देखांगे जो कंक्लूजन दे विच लिखा होएगा। क्लियर हो गया? चलो सो एक क्वेश्चन करन तो पहला आप एक रॉ एग्जाम्पल ले लेने। एग्जाम्पल की है हुण तुहानूं इत्थे दिता किवें होएगा? स्टेटमेंट्स दित्तियां होणगियां, ठीक है, 1 2 या 3 जिन्नियां मर्जी स्टेटमेंट्स। फिर उस तो बाद कंक्लूजन दिता होएगा, ठीक है। कंक्लूजन भी की है 1 2 एंड सो ऑन। हाले आप सिर्फ दो एग्जाम्पल ले रहे हैं, ठीक है। सो हुण किवें स्टेटमेंट हो सकती है? हुण मैं कहदा ऑल ए इज बी, ठीक है। वैन डायग्राम टाइप बनावांगे आप इसनूं। उस तो बाद सैकेंड एग्जाम्पल मैं ले लेना सम बी आर सी, ठीक है। ये मेरे को की होगी स्टेटमेंट। तो हुण कंक्लूजन की आ जाएगा? सम ए इज सी, सम सी आर बी, ठीक है। जल्दी क्वेश्चन नोट कर लो ये कॉपी ते। सो हुण इसदी स्टार्टिंग आप करांगे किवें? कंक्लूजन बाद चों देखांगे, लेकिन सब तो पहला आप की देखना है? स्टेटमेंट। स्टेटमेंट भी किवें बनावांगे डायग्राम? देखो ऑल ए इज बी, मेरे को की है? कुछ ए है, ये सारे दा सारा की है? बी, तो मैं फिर बी दे अंदर आ जाएगा ए। ये चीज सबनों समझ आ गई, ठीक है। पहला स्टेटमेंट है जो वो फॉलो हो गया, मतलब तुसी इत्थे डायग्राम बना ली। सेकंड स्टेटमेंट की है? सम बी आर सी, कुछ मेरा बी दा हिस्सा की है? सी है, ठीक है। सो हुण आपां नूं ए ते सी दा रिलेशन नहीं दिता होया सी क्वेश्चन च, तां आपां उस नूं की करिया? ज्यादा पंगा नहीं लिता, अनडिफाइन ही रखिया। क्लियर हो गया? सो हुण कंक्लूजन की है मेरे कोल, किवें करांगे? देखो कंक्लूजन पहला सही गलत, दूसरा सही गलत, ठीक है। तो हुण कंक्लूजन पहला की है? सम ए इज सी। सो हुण ए ते सी दा रिलेशन, ए ते सी दा जो रिलेशन है आपां नूं नहीं पता, तो जिथे अनडिफाइन आ जाए उत्थे आपां अपनी मर्जी नाल सही नहीं करांगे, ठीक है। हुण रिलेशन पता ही नहीं,
ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਡੈਫੀਨੇਟ ਕੇਸ ਦੇਤਾ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਦ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਆਪਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਹੀ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਹਨਾ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਗਲਤ। ਇੰਨੀ ਕੁ ਚੀਜ਼ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਈ। ਸੋ ਹੁਣ ਕੰਕਲੂਜਨ ਸੈਕਿੰਡ ਕੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਸਮ ਸੀ ਆਰ ਬੀ। ਮੇਰਾ ਕੁਛ ਸੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਕੀ ਹੈ, ਬੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਪੋਰਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹਾਂ ਸਹੀ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਸੈਕਿੰਡ ਕੰਕਲੂਜਨ ਕੀ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਸਹੀ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਆਈ ਹੋਪ ਸਭ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਕੁ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸਮਝ ਆਈ ਹੋਏਗੀ। ਜਲਦੀ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ। ਹਾਂਜੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਚਲੋ ਸੋ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਕਨਸੈਪਟ ਆਈ ਜਾਏਗਾ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਕਲੀਅਰ। ਕੁਐਸਚਨ 1, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਇੱਕ ਦੋ ਕੁਐਸਚਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਟਰਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨਸਰ ਦੱਸੀ ਜਾਣੇ, ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਬੋਰਡ ਤੇ ਸੋਲਵ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਕਲੀਅਰ। ਚਲੋ ਸੋ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਹੈ, ਸਮ ਸ਼ਰਟਸ ਆਰ ट्राउजर्स, सम शर्ट्स आर ट्राउजर्स। ठीक है, यानी कि मेरी कुछ शर्ट्स की हैं ट्राउजर्स हैं। सम ट्राउजर्स आर जैकेट्स, कुछ जैकेट्स की है मेरी ट्राउजर्स है। ਤੇ ਹੁਣ ਐਸ ਤੇ ਜੇ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਹੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਆਲ ਜੈਕਟਸ ਆਰ ਸ਼ਾਲਸ, ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜੈਕਟਸ ਮੇਰੀਆਂ ਕੀ ਨੇ, ਸ਼ਾਲਸ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਦੋ ਐਸ ਆ ਗਏ ਇੱਥੇ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੂਸਰੇ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਲਿਖ ਲਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਡਾਇਗਰਾਮ ਸਭ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਕਿਵੇਂ ਬਣੀ ਹੈ। ਸਮ ਸ਼ਰਟਸ ਆਰ ਟਰਾਊਜ਼ਰਸ, ਕੁਛ ਸ਼ਰਟਸ ਮੇਰੀਆਂ ਟਰਾਊਜ਼ਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਆ ਗਿਆ। फिर सम ट्राउजर्स आर जैकेट, सम ट्राउजर्स आर जैकेट यानी कि कुछ ट्राउजर्स मेरी की है जैकेट, यानी कि यह वाला हिस्सा आ गया। ठीक है। फिर थर्ड स्टेटमेंट ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ, ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜੈਕਟਸ ਕੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਲਸ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜੈਕਟਸ ਕੀ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਸ਼ਾਲਸ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਕਲੀਅਰ। ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਨਕਲੂਜਨ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਮ ਸ਼ਾਲਸ ਆਰ ਸ਼ਰਟਸ, मेरे कुछ शॉल्स मेरी की हैं शर्ट्स हैं। तो हुन ये की है शर्ट। क्या तुहानू शर्ट ते शॉल का कोई भी रिलेशन दिख रहा है, दूर दूर है। ठीक है। तो मैं की कहा सीगा, जिथे डेफिनेट केस आ जाए, ठीक है, डेफिनेट केस तुहानू कनक्लूजन दे विच दिता होया है। ठीक है। बट डायग्राम दे विच कोई रिलेशन शो ही नहीं हो रहा, तो उत्थे आपां की करांगे, गलत कर दांगे। ठीक है। तो पहला कनक्लूजन मेरा की हो गया, गलत हो गया। सेकेंड कंक्लूजन की है, सम जैकेट्स आर शर्ट्स, कुछ शर्ट्स मेरिया की ने जैकेट्स हैं, या मेरी कुछ जैकेट्स की हैं शर्ट्स हैं। सो इत्थे भी है जो तुसी देख सकते हो, रिलेशन की है अनडिफाइन है, कुछ लेना देना नहीं दिता होया आपां नू स्टेटमेंट्स दे विच, तां इह वाला कंक्लूजन भी तुहाडा की होएगा, गलत हो जाएगा। क्लीयर हो गया। सो हुण पेपर ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਕਨਕਲੂਜਨ ਕਿਹੜਾ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਗਲਤ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਸੋਲਵ ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਗਲਤ ਹੈ ਦੂਸਰਾ ਗਲਤ ਹੈ, ਬਟ ਆਪਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਟਿਕ ਲਗਾਓਗੇ, ਕੀ ਹੈ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਥੇ, ਨੀਦਰ 1 ਨੋਰ 2 ਫੋਲੋਜ਼। ਸੋ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਐਸਾ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ, 5 ਆਪਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ बेसिकली। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ, पहला सही है, दूसरा सही है, ईदर और मतलब ईदर 1 और कंक्लूजन 2 इज 2 फॉलोज। फिर की होएगा, नीदर 1 नॉट 2 फॉलोज, या फिर बोथ फॉलोज। ये अगे जाके तुहानू चीज पता चल जाएगी। तो हुण तुसीं की करोगे, इस ऑप्शन को टिक लगा दोगे कि ना तो मेरा पहला कंक्लूजन फॉलो कर रहे, ना ही मेरा सेकेंड कंक्लूजन फॉलो कर रहे। ये चीज समझ आ गई। ठीक है, नोट कर लो जल्दी।
हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं आप। ਹੁਣ ਇਹ क्वेश्चन देखो, स्टेटमेंट की है सम लीव्स आर प्लांट्स। कुछ लीव्स मेरे की ने प्लांट्स हैं, ठीक है। सम प्लांट्स आर ट्रीज, कुछ प्लांट्स की ने ट्रीज। सम ट्रीज आर फ्रूट्स। तो डायग्राम एवं ही बनाई होगी तुसी सबने। कुछ लीव प्लांट हैं, कुछ प्लांट ट्री हैं, कुछ ट्री फ्रूट्स हैं, ठीक है। सो हुन कंक्लूजन 1 मेरे को की सिखा रहे हैं। कंक्लूजन 1 की है, कंक्लूजन 2 तुसी दसो एक बार ट्राई करके की हो सकता। सम फ्रूट्स आर ट्रीज, कुछ फ्रूट्स मेरे की ने ट्रीज। हाँ जी वो सही था कह रहे, यानी कि इस पोर्शन की गल कर रहे, ठीक है। तो यही कही हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। फिर उस तो बाद सम ट्रीज आर प्लांट्स, कुछ ट्रीज मेरे की ने प्लांट है, यानी कि वो इस पोर्शन की गल कर रहे हैं, यानी कि ट्रीज थोड़े की ने कुछ प्लांट्स हैं। तो यह कंक्लूजन भी की हो गया, सही हो गया। तो हम वही चीज ऑप्शन थोनू यही नहीं पूछा होगा कि सही है कि गलत, ये तो तुसी अपने बेसिस ते चेक करना है। बट उत्थे की होएगा, बोथ 1 एंड 2 फॉलोस, ठीक है। सो तुसी उत्थे केड़ा ऑप्शन टिक लगाओगे अगर ऑप्शन देता होएगा बोथ 1 एंड 2 फॉलोस। क्लियर हो गया सब, थोड़ा समझ आने लग गया, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन ट्राई करके देखो, 30 सेकेंड्स का टाइम है, चलो करो। हाँ जी करो जल्दी जल्दी कमेंट सेक्शन दे विच अपना अपना आंसर। सो हुन की है क्वेश्चन, सम रैट्स आर डॉग्स, कुछ रैट्स की हैं डॉग्स हैं, ठीक है। सम डॉग्स आर हॉर्सेस, कुछ डॉग्स हॉर्सेस हैं। सम हॉर्सेस आर कैमल, ठीक है। इतना तक समझ आ गया। सो हुन कंक्लूजन 1 की है सम हॉर्सेस आर रैट्स। सो हुन तुसी देख सकते हो हॉर्स ਤੇ ਰੈਟ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਗਲਤ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਨਕਲੂਜਨ ਚ ਡੈਫੀਨਿਟ ਕੇਸ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਗਲਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੈ, ਸਮ ਕੈਮਲ ਆਰ ਹੌਰਸਿਸ, सम कैमल्स आर हॉर्सेस, ठीक है। तो इस दो पोर्शन की गल कर रहे हैं, यानी कि वो कुछ हॉर्सेस की हैं कैमल है, या फिर कुछ कैमल की हैं हॉर्सेस। तो वो चीज़ सही है डायग्राम दे विच, तो वो कंक्लूजन थोड़ा की हो जाएगा, सेकंड वाला सही हो जाएगा। तो हम तुसी इत्थे की करना है, ओनली टू फॉलो, ठीक है। सो थोड़ा इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा, ओनली टू फॉलोस। क्लियर हो गया सबनू। चलो एक क्वेश्चन ट्राई करके देखो। स्टेटमेंट की है सम बुक्स आर डिक्शनरीज, सम बुक्स आर डिक्शनरीज, सम डिक्शनरीज आर फाइल्स, सम फाइल्स आर पेपर। समझ आ गया। सो हम उम्मीद कर रहे हैं कि बनाने विच कोई भी दिक्कत नहीं हो रही होगी, ठीक है। कंक्लूजन आप क्वेश्चन ही इन्ने प्रैक्टिस कर लेने,
कि पता चल जाएगा ਆਪਾਂ ਨੂੰ। सो ਹੁਣ कंक्लूजन की है सम पेपर आर फाइल्स, सम पेपर आर फाइल्स। सो सही तो कह रहे हो, कुछ फाइल पेपर है या फिर कुछ पेपर की ने फाइल, यानी कोई इस पोर्शन की गल कर रहे। पहले वाला कंक्लूजन की हो गया, सही हो गया। सेकंड की है सम फाइल्स आर बुक। तो हम तुसी देख सकते हो फाइल आ से बुक ए से कोई भी रिलेशन नहीं डिफाइन ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ठीक है। तो जिथे रिलेशन नहीं डिफाइन उत्थे तुसी की कर दोगे, गलत कर दोगे, ठीक है। सो हुन इस क्वेश्चन का आंसर फिर की हो जाएगा ओनली वन फॉलोस, ठीक है। हुन जिथे भी ऑप्शन यही होएगा तुसी की कर दोगे ओनली वन फॉलोस। क्लियर हो गया। सो देख लो 3-4 अपने जो क्वेश्चन हुए हैं बहुत ज्यादा आसान सी। चलो ये क्वेश्चन देखो, सम स्टोन्स आर रॉक्स, कुछ स्टोन्स मेरे की ने रॉक्स हैं, ठीक है। फिर ऑल रॉक्स आर क्लाउड्स, ठीक है। ऑल क्लाउड्स आर रेन। सो ये कुछ नवे टाइप का क्वेश्चन है, सारी कॉन्सेंट्रेशन अपनी स्क्रीन के ऊपर रखो। सो हुन डायग्राम मेरी किवें बनेगी, कुछ स्टोन मेरे की ने रॉक्स हैं, ठीक है। फिर सारे दे सारे रॉक्स मेरे की हैं क्लाउड्स हैं, सारे दा सारा मेरा क्लाउड की है रेन है। ये चीज सबनों पता चल गई, डायग्राम बन गई। सो हुन कंक्लूजन वन मेरे को की है सम रेन्स आर स्टोन, ठीक है। कुछ रेन का हिस्सा मेरा की है स्टोन है। हाँ जी सही कह रहे हैं, यानी कि वो इस पोर्शन की गल कर रहे हैं, ठीक है। मेरे इस पोर्शन की गल कर रहे हैं, तो इतने हुण तुसीं की करोगे, सही कर दोगे। उम्मीद करता सबनों समझ आ गया। फिर की है सम क्लाउड्स आर रॉक, कुछ क्लाउड मेरे की ने रॉक है, ठीक है। तो हुण रॉक सारे का सारा की है क्लाउड के अंदर तो आ गया, क्लाउड का कुछ हिस्सा या पोर्शन उसने रॉक ने की किया है ऑब्जर्व, ऑब्जर्व नहीं आप बोलेंगे कंटेन किया हुआ है, ठीक है। कि मैं देखो रॉक है, क्लाउड अगर इन्ना बड़ा है यानी कि उस रॉक ने इन्ना हिस्सा कंटेन किया हुआ है क्लाउड का। क्लियर। सो कुछ क्लाउड्स मेरे की हैं रॉक्स हैं, तो ओह वाली चीज भी की है सही है। तो इतने थोड़े दोनों ऑप्शन सही हो गए, तो फिर उत्थे तुसी की ऑप्शन टिक लगाओगे, बोथ वन एंड टू फॉलोस, ठीक है। सो इस क्वेश्चन का आंसर थोड़ा कितना हो जाएगा, बोथ वन एंड टू फॉलोस। क्लियर हो गया सबनों, जल्दी नोट कर लो। चलो अगला क्वेश्चन ट्राई करो जल्दी, क्वेश्चन है एक बार फिर आप करते हैं बोर्ड से इकट्ठे। करो ट्राई। चलो सो हम क्वेश्चन की है स्टेटमेंट, सम कीज आर होल्स, कुछ कीज मेरिया की ने होल्स हैं, ठीक है। ऑल होल्स आर फोल्डर्स, सारे दे सारे होल्स की हैं फोल्डर्स हैं। सम फोल्डर आर स्टैट्स, ठीक है, एवं ही आएगा, ठीक है। सो हुण तुसीं अपनी मर्जी दे नाल इस स्टैंड वाला सर्कल बड़ा करके होल्डर दे विच नहीं लेके आना, क्योंकि आपां नूं ऐसा एच कोई रिलेशन नहीं दिता होया एच ते एस दा। क्लियर। सो हुण पहला कंक्लूजन मेरे कोल की है, पहला कंक्लूजन मेरे कोल की है सम स्टैंड्स आर कीज, यानी कि इस स्टैंड ते इस के दी गल कर रहे आपां नूं नहीं पता, ठीक है। अनडेफिनेट है, कंक्लूजन दे विच डेफिनेट है, बट स्टेटमेंट च कोई भी ऐसा रिलेशन नहीं है, तो आप की कर देंगे, गलत कर देंगे। सेकंड देखो सम स्टैंड्स आर
ਹੋਲਸ। ਸੋ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਦਾ ਵੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਕੀ ਹੋਗੀ, ਗਲਤ ਹੋਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਐਚ ਤੇ ਐਸ ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇੱਥੇ ਆਏਗਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਨੀਦਰ 1 nor 2 follows। तो इस क्वेश्चन का आंसर थोड़ा कितना आ गया, नीदर 1 nor 2 follows। जल्दी क्वेश्चन नोट कर लो। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। सैलॉजिज्म एक ऐसा टॉपिक है जिन्ने ज्यादा प्रैक्टिस उन्ने थोड़े कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे जाएंगे। ठीक है, ताकि हम आप स्पीड थोड़ी तेज की हुई है, क्वेश्चन से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन जिमें ही चेंज होएगा यानी कि नवा कुछ कॉन्सैप्ट आएगा, तो कॉन्सैप्ट भी नाल दी नाल समझ आई जाएगा। ठीक है, चलो हुण यही क्वेश्चन देखो, हो ही गया आई थिंक कॉन्सैप्ट चेंज। ऑल मोबाइल्स आर फोन्स, सारे दे सारे मोबाइल्स की हैं, फोन्स हैं। ठीक है, ऑल फोन्स आर कंप्यूटर, सारे दे सारे फोन की हैं, कंप्यूटर हैं। ऑल कंप्यूटर्स आर स्कैनर्स। ठीक है, सो ऐसी डायग्राम अपनी पहला कोई भी नहीं बनी है, डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन होगा। ठीक है, समझ आ गया सबनों, सारे दे सारे मोबाइल फोन हैं, फोन कंप्यूटर हैं, कंप्यूटर स्कैनर है, ये चीज क्लियर होगी। सो हुन मेरे को पहला ऑप्शन की आएगा, कंक्लूजन पहला की है, देखो ऑल मोबाइल्स आर कंप्यूटर, सारे दे सारे मोबाइल की हैं कंप्यूटर, तो यह चीज सही होएगी। ठीक है, क्यों सही होएगी, देखो सारे दे सारे मोबाइल किवें होणगे, मोबाइल की है सारे फोन, फोन की है सारे कंप्यूटर। ठीक है, हुण कंप्यूटर दी जुरिसडिक्शन इत्थे तक है, मोबाइल दी जुरिसडिक्शन कित्थे तक है, इत्थे तक, तो ऑटोमैटिकली कंप्यूटर दे अंदर ही आ गया ना सारे दा सारा मोबाइल, तो वो पहला कंक्लूजन आप इस करके सही किया है। ठीक है, फिर हुण उस तो बाद सेकंड की है, ऑल स्कैनर आर फोन, सारे दा सारा स्कैनर की है फोन। ये चीज पॉसिबल है क्या, हुण यही की है, आप कलर चेंज कर लेने और ए की है फोन। ठीक है, ए की है स्कैनर, तो छोटी चीज के अंदर बड़ी चीज किवें आ जाएगी। ठीक है, बाकी आ जाएगी, लेकिन उस दे लई कंक्लूजन दे विच तुहाडे कोल एक या दो वर्ड्स होने चाहिए, वो अगे देखांगे आपां। ठीक है, हुण फोन दा जुरिसडिक्शन की है यह, उस दे विच बड़ी चीज किवें आ जाएगी, स्कैनर से नहीं आ सकते, तो यह कंक्लूजन की होएगा, गलत होएगा। आई होप सबनूं क्वेश्चन समझ आ गया। हुण ओह वाला केस जिथे अपना यह सेकंड कंक्लूजन की होएगा राइट, वो की किवें होएगा, अगर मैं सेकंड कंक्लूजन दे विच लिखना ऑल स्कैनर आर फोन is a possibility। ठीक है, सो हुन जिथे रिलेशन अपना की है अनडिफाइन है या गलत है। ठीक है, सो हुन फॉर एग्जांपल अपना क्वेश्चन सिर्फ इथे तक है, ऑल स्कैनर आर फोन। ठीक है, सो हुन अपना कंक्लूजन की है दूसरा गलत, बट द पॉसिबिलिटी और थोड़ा ऑटोमेटिकली कंक्लूजन की कर देगा, सही कर देगा। ठीक है, अगर तो इज अ पॉसिबिलिटी आ गई तो फिर थोड़ा कंक्लूजन की हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगर इज अ पॉसिबिलिटी नहीं है, फिर जो थोड़ा सेकंड कंक्लूजन हो की हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, हुण तुसी सोच रहे होंगे कि बड़ी चीज छोटी दे अंदर किवें आ जाएगी। ठीक है, देखो किवें, एम एम दे बाहर की आ गया पी, सो हुण पी दे नाल ही मैं सर्कल बनाता किसदा, सी दा, फिर इस दे नाल ही मैं सर्कल बनाता किसदा, एस दा। ठीक है, तो हुण ये चीज तो है, तो हुण इसनूं मैं किवें एक्सप्लेन करूंगा, अगर मैं रखदा चूड़ी दे उपर चूड़ी, सेम साइज दी चूड़ी है, सारे पी की हैं, फोन्स मेरे की हो गए, स्कैनर हो गए, सारे स्कैनर मेरे की हो गए, फोन हो गए। फॉर एग्जाम्पल ए की है पी, नाल दी नाल एक सेम साइज दी चूड़ी में रखती, वो की मेरा बन जाएगा स्कैनर।
ਤਾਂ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਜ਼ ਅ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਵਾਲੀ ਵੈਸੇ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਬਟ ਇੱਥੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਦੱਸ ਦੀ ਟਾਈਪ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਚਲੋ, ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇਜ਼ ਅ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਦੇਖੀ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਚਲੋ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ। 7th ਕੁਐਸਚਨ ਹੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁਣ, ਹਨਾ? ਹਾਂਜੀ, ਚਲੋ 8th ਕੁਐਸਚਨ ਕਰੋ। ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ 30 ਸੈਕਿੰਡਸ ਲਓ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਟਰਾਈ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ। चलो, सम ग्लासेस आर टैबलेट, कुछ ग्लास मेरे की ने टैबलेट है। ठीक है, ऑल मशीन्स आर टैबलेट, यानी कि टैबलेट के अंदर की आ गया मशीन। कुछ इवें ही डायग्राम बनेगी अपनी, क्लियर? सो हुन कंक्लूजन 1 मैनू की सिखा रहा है? सो कंक्लूजन 1 की है? ऑल टैबलेट्स बीइंग मशीन इज अ पॉसिबिलिटी। ठीक है, सारी दी सारी टैबलेट मेरी की है मशीन, ਉਹ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਮਸ਼ੀਨ ਦਾ ਸਰਕਲ ਹੈ ਮੈਂ ਬੜਾ ਕਰ ਦੇਣਾ, यानी कि टी ਤੇ एम ਦਾ ਸਰਕਲ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ठीक है, तो फिर अगर बराबर हो गया तो वो टैबलेट मशीन के अंदर आ गई, मशीन टैबलेट के अंदर आ गई, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਨਾਲੇ वर्ड भी अपने को ਇੱਥੇ है की है इज द पॉसिबिलिटी। ठीक है, ਤਾਂ ਕਰਕੇ अपना पहला कंक्लूजन सही हो। कंक्लूजन ਗਲਾਸਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਡਾਇਗਰਾਮ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਨਵੀਂ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਮੇਰੀ ਜੋ ਮਸ਼ੀਨਸ ਹੈ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਕੀ ਹੈ? ਗਲਾਸਿਸ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਸਾਰੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਸ ਉਹ ਟੈਬਲੇਟ ਹੈ। क्या मैं मशीन्स ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੈ ਆਵਾਂ? ਠੀਕ ਹੈ, ਨਾ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਗਲਤ ਹੋਈ ਤੇ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਵਰਡ ਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਨਾ ਹੀ ਮੇਰਾ ਕਨਕਲੂਜਨ ਗਲਤ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕੀ ਕਿਹਾ ਉਸਨੇ? ਆਲ ਮਸ਼ੀਨ ਬੀਇੰਗ ਗਲਾਸਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ, ਕਿ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਪੋਸੀਬਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਸ ਦੇ ਗਲਾਸਿਸ ਬਣ ਜਾਣ। ਤਾਂ ਹਾਂ, ਪੋਸੀਬਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਨਾ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਗਲਤ ਹੋਈ, ਨਾ ਹੀ ਕਨਕਲੂਜਨ ਜੋ ਮੰਗਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਬਣਨੋਂ ਹਟਿਆ। ਕਨਕਲੂਜਨ ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਵੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਇਜ਼ ਦਾ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਵਰਡ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ ਕਨਕਲੂਜਨ 2 ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ, ਸਕਰੀਨਸ਼ॉट खींच लो, काफी अच्छा क्वेश्चन है। इस तरीके ਦੇ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਕਾਫੀ क्वेश्चन डिस्कस ਕਰਾਂਗੇ। चलो जी, अगला क्वेश्चन करो। देखो क्वेश्चन पढ़। ऑल एलिफेंट्स आर कैट्स, ऑल कैट्स आर डॉग्स, ऑल डॉग बीइंग कैट इज अ पॉसिबिलिटी, ऑल कैट बीइंग एलिफेंट इज अ पॉसिबिलिटी। ठीक है, लो 30 सेकंड्स से ट्राई करो। हाँ जी, हो
चलो सो हुण की है मेरे को स्टेटमेंट, ऑल एलिफेंट्स आर कैट्स, सारे दे सारे एलिफेंट्स मेरे को की हैं कैट्स हैं, ठीक है। ऑल कैट्स आर डॉग्स, सारे दे सारे कैट की है डॉग। तो डायग्राम सब दी यही बनी होनी है ना। सो हुण कंक्लूजन की गल करते हैं आप, ऑल डॉग बीइंग कैट इज अ पॉसिबिलिटी, ठीक है। तो ये चीज की हो जाएगी, सही हो जाएगी। पिछले दो क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि सारे दे सारे डॉग बड़े वाला सर्कल कैट के बराबर आ सकते, तो दोनों एक दूसरे के जा सकते हैं। बट एक कंडीशन होनी चाहिए है, इज अ पॉसिबिलिटी वर्ड लिखा होना चाहिए है। पहली गल तो पॉसिबिलिटी वर्ड बनया किसका है, पॉसिबल। तो हम पॉसिबल का मतलब की होंगे, हो सकता है, ठीक है, हो सकता है, ठीक है, यही होंगे, ठीक है, यही होंगे। चेक करो। सो हुण इत्थे की है, ऑल कैट बीइंग एलिफेंट इज अ पॉसिबिलिटी। तो हुण अगर डॉग कैट दे विच आ सकता है, बड़ी वाली चीज छोटे दे विच आ सकती है, तो हुण सी ते ई दे विच की रिलेशन है, सी बाहर है ई अंदर, तो सी तो भी ई दे अंदर आ सकता है, ठीक है। नाले वर्ड भी की आ गया इज अ पॉसिबिलिटी। तो हुण इत्थे जो थोड़े है दोनों दे दोनों कंक्लूजन की है सही हो जाएंगे, ठीक है। तो इत्थे वो एंड फॉलोस। क्लियर हो गया सबनू। चलो अगला क्वेश्चन करो। ऑल अनिकेत आर विकी, काफी अच्छा क्वेश्चन है। विकी आर प्रशांत, नो प्रशांत इज अ नीरज। सो हुण तुसी कोई भी क्वेश्चन ऐसा पीछे नहीं करिया सीगा जिस दे विच नो है। आपां ऑलरेडी किहड़े किहड़े क्वेश्चन देख चुके हैं, ऑल वाले देख ले, सम वाले देख ले, ठीक है। सो हुण आपां जिहड़ी टाइप करन लगे हो किहड़ी टाइप है, नो वाली, ठीक है। चलो करो। बाकी पॉसिबिलिटी नाल तां हुण तुसी आई थिंक काफी फैमिलियर हो ही गए। नवे टाइप का क्वेश्चन है, चलो करते हैं, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते। स्टेटमेंट की कह रही है, ऑल अनिकेत आर विकी, सारे का सारा अनिकेत की है विकी है, ठीक है। सम विकी आर प्रशांत, कुछ विकी मेरा की है प्रशांत है। नो प्रशांत इज नीरज। तो हुण तुसीं ध्यान नाल देखो इत्थे इसनूं किवें आपां डिफाइन करांगे। कोई भी प्रशांत मेरा की है नीरज नहीं है, ठीक है। तो हुण ना तुहानूं नीरज दा रिलेशन वी दे नाल पता है, ना ए दे नाल पता है, रिलेशन अनडिफाइन है, ठीक है। तो हुण उसने मैनूं स्ट्रिक्ट वर्ड्स दे विच कहा सीगा कि मेरा जो प्रशांत है कोई भी नीरज नहीं है। तो नो वाली चीज नूं आपां किवें लिखांगे, एवें जिवें मैं बोर्ड ते हुण डायग्राम बना के लिखिया होया है। क्लियर। सो हुण कंक्लूजन वन मैनू की सिखा रहा है, ऑल अनिकेत बीइंग प्रशांत इज अ पॉसिबिलिटी, ठीक है। हुण वो की कह रहा है कि मेरा जो अनिकेत है सारे का सारा प्रशांत हो सकता है, ठीक है। पहली गल, अगर मैं सिर्फ इन्नी की चीज पढ़ा, ठीक है, ऑल अनिकेत बीइंग प्रशांत, तुसी की कहोगे अनिकेत ते प्रशांत का रिलेशन मैनू नहीं पता, मैं गलत करता, ठीक है। तो हुण गलत करता, मैं थोनू की कंडीशन दसी सी, अगर इज अ पॉसिबिलिटी आ जाए तो स्टेटमेंट थोड़ा की है, या तो अनडिफाइन है या फिर गलत है, ठीक है। कोई रिलेशन नहीं सी, आपां की करता गलत, या तो फिर गलत आ गया, या फिर तुसी कह लो कि रिलेशन है जो अपना की है अनडिफाइन है। तो तीसरा की है इज अ पॉसिबिलिटी वर्ड आ गया, तो जो थोड़ा कंक्लूजन होएगा वो की हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। आई होप उन सबनों समझ आ गया होगा पॉसिबिलिटी का मतलब। चलो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, ऑल नीरज बीइंग अनिकेत इज अ पॉसिबिलिटी, ठीक है। सो हुण देखो ध्यान दे नाल, मैनू क्वेश्चन दे विच क्या है, मेरा अनिकेत दा नहीं, मेरा नीरज ते प्रशांत दा कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। आई एक्सेप्ट कोई रिलेशन नहीं है। बट क्या उसने मैनू यह कहा कि मेरा नीरज दा विकी ते अनिकेत दे नाल कोई रिलेशन नहीं है, नहीं किया, ठीक है। सो हुण इत्थे की आ गया थोड़ा, अनडिफाइन आ गया रिलेशन, ठीक है। अनडिफाइन आंदा उत्थे की होंदा है, गलत हो जाता है। बट इज अ पॉसिबिलिटी वर्ड आ गया, तो जो थोड़ा सेकंड कंक्लूजन है वो सही हो जाएगा। समझ आ गया सबनू, ठीक है। बहुत ज्यादा आसान है अगर समझ समझ के करांगे। तो क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट खिंच सकते हो, फ्यूचर ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ।
चलो अगला क्वेश्चन करो ट्राई। सो इस वास्ते थोनू 30 सेकंड्स मिल रहे, ट्राई करो जल्दी। चलो सो हुन क्वेश्चन देखो। ऑल हिल्स आर माउंटेन, सारे दे सारे हिल्स की हैं, माउंटेन्स हैं, ठीक है। सम माउंटेन्स आर स्टेट्स, ऑल स्टेट्स आर कंट्रीज। एवं ही बनी होएगी सब दी डायग्राम, ठीक है। तो हुन कंक्लूजन की है मेरे को, ऑल हिल बीइंग कंट्रीज इज अ पॉसिबिलिटी। सारे दे सारे हिल कंट्रीज हो सकते हैं, हाँ जी। क्यों? क्योंकि एच ते सी का कोई भी रिलेशन आपां नहीं पता, अनडिफाइन है। अगर पॉसिबिलिटी ना होंदा आप रिलेशन गलत कर दे, बट पॉसिबिलिटी आ गया तो वो चीज़ आप की कर देंगे, सही कर देंगे, ठीक है। सेकंड कंक्लूजन देखो, सम कंट्रीज आर नॉट बीइंग माउंटेन इज अ पॉसिबिलिटी। तो हुन इत्थे एक चीज नवी आ गई, नॉट वाली, ठीक है। वो कह रहे है ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਹਲੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਵੇਂ, ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਜ਼ ਅ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਵਰਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਮ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨਾਟ ਬੀਇੰਗ ਮਾਊਂਟੇਨ, ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਰੁਕ ਜਾਓ। ਸਮ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨਾਟ ਬੀਇੰਗ ਮਾਊਂਟੇਨ, ਹੁਣ ਉਸਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਮੇਰੀ ਜੋ ਕੁਝ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਮਾਊਂਟੇਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ, ਹਾਂਜੀ ਜੋ ਸਿਰਫ ਇਹ ਵਾਲਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਹੈ, ठीक है, ये वाला माउंटेन मेरा नहीं हैगा, ठीक है। बट उसने मैनू की किया, डेफिनेट किया, जो ये डायग्राम बनी है ये डेफिनेट नहीं होंगी, क्योंकि इज अ पॉसिबिलिटी जिथे आ जाता डायग्राम चेंज हो सकती है, ठीक है। सो हुण इत्थे की है, सम कंट्रीज नॉट बीइंग माउंटेन, ठीक है। इन्हें कहता भी मेरी कुछ कंट्रीज माउंटेन हैगियां ही नहीं, वो चीज़ आपां नूं डेफिनेट थोड़ी है। तो हुण जिथे डेफिनेट हुंदा उत्थे आपां की करदे आ, गलत कर दिंदे आ। जिथे डेफिनेट जिथे डेफिनेट नहीं होंगे उत्थे आपां की करते हैं, गलत कर देंगे हैं। बट तुहानूं पता है जिथे इज अ पॉसिबिलिटी आ जाए तो वो चीज़ नूं आपां नूं फिर की करना पैंदा है, सही करना पैंदा है कि हाँ हो सकता है कि मेरा कुछ कंट्रीज माउंटेन नहीं होन, इज अ पॉसिबिलिटी आ गया। तो पॉसिबिलिटी दे विच इज अ पॉसिबिलिटी नूं तुसीं एक वर्ड नाल होर दिता होएगा कंक्लूजन दे विच, ठीक है। उसका भी तुसी ध्यान रखना है, कैन बी, ठीक है। कैन बी का मतलब भी की हुंदा है, हो सकता है। पॉसिबिलिटी का मतलब भी की हुंदा है, हो सकता है, ठीक है। तो कैन बी हुंदा है। अगर हुण इत्थे मैं लिखदा सम कंट्रीज कैन नॉट बीइंग माउंटेन, ठीक है, इज अ पॉसिबिलिटी नहीं दिता, तो हुण तुसीं की है, इज अ पॉसिबिलिटी ही हमेशा नहीं लभना, जिथे कैन बी आ जाए उत्थे भी तुसीं की करना है, पॉसिबल वाला केस ही चेक करना है, ठीक है। तो हुण इस कंक्लूजन इन्हां दे विच मेरे की हो गए, दोनों दे दोनों कंक्लूजन सही हो गए, बोथ 1 2 फॉलोस, ठीक है। सो आई होप सबनूं समझ आ रहा है। सो लास्ट क्वेश्चन है जो थोड़े लिए होमवर्क होएगा, करो होमवर्क एक बार, स्क्रीनशॉट खींचो, ठीक है। ये भी बिल्कुल सेम केस है जो आप पीछे किया है, सेकंड कंक्लूजन का ही है जो रोल इस क्वेश्चन दे विच। इस क्वेश्चन नूं तुसीं स्क्रीनशॉट खींचो तो अपना अपना कॉमेंट सैक्शन दे विच जरूर दसो, ठीक है। सो उम्मीद कर रहे हैं आज आप जिन्ना सैलॉजिज्म किया है सबनों समझ आया होगा, क्लीयर। सो जिथे तक मैनू लगता है सैलॉग्स दी अपनियां जो 3 वीडियोज़ बननगियां, अच्छी तरह देख लो। सैलॉग्स कोई भी ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं होएगा जो आप कवर नहीं करांगे, ठीक है। या फिर कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होएगा, ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं होएगा कि पेपर च आ जाए बट अपन आंदा नहीं होएगा, ठीक है। सो इसकी
100% ਗਾਰੰਟੀ ਮੈਂ ਲੈਂਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਸੈਲੌਗਸ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨੋਂ ਦੀ ਤਿੰਨੋਂ ਜਾਂ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਸੈਲੌਗਸ ਦੀ ਆਣਗੇ ਦੇਖੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਨਸੈਪਟ ਤੁਹਾਡਾ ਛੁੱਟੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਸਭ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਲੱਗੀ ਹੋਊਗੀ, ਸਮਝ ਆਈ ਹੋਊਗੀ। ਅਗਰ ਵੀਡੀਓ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜੋ ਚੈਪਟਰ ਹੈ ਸੈਲੌਗਸ ਦਾ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਥੈਂਕਸ ਫॉर ਵਾचिंग।